Today I am going to discuss atomic structure chemistry part, right? So this chapter is really important because this chapter you will study again in class 12th, not even in class 11th chemistry, but in class 12th physics, in modern physics, right? Where you will study it through some more graphs and derivations. But in chemistry, you study the energy formulas, radius formulas. These things are going to be same. The photoelectric effect, everything is going to be same. So you must be very very careful when you are calculating the things in this chapter, because you will get the questions of structure of atom not only in chemistry and in physics as well, right? So this chapter is really important, and very interesting concepts are there. If you'll go through the ncrt, you will see that initially the atom was indivisible according to the John Dalton. After that, so many theories of J.J. Thomson and Rutherford, and after that Bohr's model, Maxwell's theory, different theories are there. How the things are arranged, electrons, protons, neutrons are arranged in the atom, and how the orbits are defined. Different theories are there, and literally very interesting chapter, right? So you must go through the ncrt, correct? So I will start with my first question of January session, JEE. This first question is: two positively charged particles M1 and M2 have accelerated across the same potential difference of 200 kilovolt as shown, right? So here in this diagram it is given two M1 M2 are there, and they are accelerated with the same constant voltage. Different mass is there, but they are accelerated through the constant potential, right? The masses are different, and what they are asking, the de Broglie wavelength, it is important, that is the de Broglie wavelength they are asking. This is de Broglie wavelength of M1 is x times M2. The value of x पूछ रहा है, correct? तो de Broglie wavelength का फॉर्मूला आपको पता होता है, lambda is equal to h upon p, right? So de Broglie wavelength is itself very very important concept, because it explains you about the duality of matter, right? So atom is dual nature. That means it can behave like a particle because it has a momentum, and it can act as like a wave. It has a wavelength also, right? So both the things are present in the matter, right? And they are inversely proportional. So lambda is equal to h upon p, and momentum ko if you want to write in the form of voltage, how you can write momentum ko, you can write in the form of kinetic energy, right? Kinetic energy ko you can write under root 2 km. P is equal to under root of 2 mk, and k is the kinetic energy here. Kinetic energy ko you can write in the terms of voltage, that is EV. So it is 2 under root 2 mk ko I can write EV. So what I'm trying to figure out here, that lambda is inversely proportional to the square root of mass, because voltage is constant and charge of electron is also constant. This Planck's constant is definitely constant. So what we are getting, that lambda is inversely proportional to the square root of mass. That means I can write lambda 1 upon lambda 2 is equal to under root of m2 by m1, right? So simple question is there. Under root of m2, mass m2 is given, that is 4 mu, and this is 4 and this one is 1. So 4 by 1, square root will become 2 is to 1. So lambda 1 is equal to 2 times lambda 2, correct? So the answer is 2. So they were asking the wavelength is 2 times. So simple question was there. So integer. Second, the wavelength of photon A is 400 nanometer. The frequency of photon B is 10 raised to the power 16. The wave number, देखो सब में अलग अलग चीजें गिवन है, एक में वेवलेंथ है, एक में फ्रीक्वेंसी है, इसमें वेवलेंथ, इसमें फ्रीक्वेंसी, and in this the wave number of photon. Photon is a light particle. Photon है ना, and इसमें हमें बताना है correct order of energy, correct? तो energy का हमें फॉर्मूला पता होता है, E is equal to hc by lambda. So if I know the wavelength, I can just put the value of lambda. H and c की वैल्यू क्या होती है? H is 6.67, 6.6 ले रही हूँ 10 की पावर माइनस 34. hc लाइट की स्पीड होती है 3 into 10 की पावर 8 अपॉन lambda. Lambda is 400 nanometer. 400 nanometer. So it will become 10 raised to the power minus 7, and इसको कैलकुलेट करोगे तो it will become 6.6 into 3 by 4
10 raised to the power -7 और -7 प्लस होगा तो इट विल बिकम 15 एंड 15 10 to the power -7 हो जाएगा, -7 प्लस 8 विल बिकम 15 एंड 15 -34 विल बिकम -19, राइट। तो मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लूँ क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर चेक करना है। तो ये हो गया फर्स्ट के लिए E1 एंड E2 के लिए अगर तुम देखोगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो एनर्जी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म में होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि C by lambda is new, nothing but nothing new. So it is h new, h is 6.6 into 10 raised to the power minus 34 into nu is 10 raised to the power 16. So it will become 6.6 into 10 raised to the power minus 18, right? So ये B part हो गया, E1 लिख लो या E2 लिख लो, ये B हो गया, ये A का हो गया, and EC. C के लिए क्या है, मुझे वेव नंबर गिवन है, तो वेव नंबर इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर को न्यू बार से लिखते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो एच सी बाई लैम्डा होता है, तो एच सी न्यू बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच सी न्यू बार। तो h इंटू सी की वैल्यू हम निकाल चुके थे, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख लेती हूँ, 6.6 इंटू 10 raised to the power minus 34, c is 3 into 10 raised to the power 8 and the new bar is given, that is 10 raised to the power 4। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है मुझे SI यूनिट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज सेंटीमीटर इनवर्स इज गिवन एंड यहाँ से सेकंड इनवर्स है, तो सेंटीमीटर इनवर्स को अगर तुम इसको करोगे मीटर इनवर्स में तो 10 की पावर 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 10 raised to the power 6 मीटर इनवर्स, राइट। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 raised to the power 6, तो बच्चे ये गलती कर देते हैं यहाँ पे, तो ये जूल में आ जाएगा आपका आंसर। तो 8 + 6 ये आएगा 14 और 10 raised to the power minus 34। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ रही है 10 raised to the power minus 18, ये वैल्यू सबसे लार्जेस्ट है, तो बी की वैल्यू हाईएस्ट होगी। बी के बाद अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इफ आई विल मल्टीप्लाई दिस देन व्हाट आई विल गेट 6.6 into 3, 6.6 into 3 that is 19.8। यहाँ पे आ रहा है आपका, अप्रोक्सीमेटली करोगे तो 1.98 into 10 raised to the power minus 19 हो जाएगा, और ये वैल्यू ज्यादा आएगी, ये 1.98 आएगा, सेम ऑर्डर में ऑर्डर यही वाला रहेगा। और 6.6 into 3/4 यानी कि ये वैल्यू क्या होगी, अगर हम चेक करें यहाँ पे into 3 है और यहाँ पे /4 है, तो एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेना, मैं राउंड ऑफ करके बता रही हूँ। सबसे ज्यादा तो देखो बी का है, तो बी है, देन सी है, फिर ए है, बी की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, तो बी की वैल्यू सबसे ज्यादा तुम्हारे पास बी पार्ट में दी हुई है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा सीधे, करेक्ट। सो द आंसर विल बी बी पार्ट, क्योंकि यहाँ 10 raised to the power minus 18 है और इन दोनों में 10 raised to the power minus 19 आ रहा है। जस्ट कैलकुलेटेड, सिंपल क्वेश्चन था, E is equal to hc by lambda लगाना था, कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो केमिस्ट्री इज ऑलमोस्ट सिंपल, whenever they are asking in exam, chemistry is simple, right? तो केमिस्ट्री प्रैक्टिस करते रहो, तो सबसे स्कोरिंग केमिस्ट्री होती है, और अगर अटेम्प्ट करते हो सबसे पहले केमिस्ट्री ही अटेम्प्ट करते हो, और केमिस्ट्री इज द सिंपलेस्ट वन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग point in the figure to most accurately represent the nodal surface? You know what is a nodal surface? Nodal surface उन्होंने मार्क करके दिया है, ये जो nodal surface होता है at that वो एक surface है जहाँ पे probability of finding the electron is almost 0। तो देखते ही क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे probability density function दिया हुआ है, probability of finding the electron is 0 at point B, करेक्ट। तो B is the answer, इसमें कुछ करने नहीं था, डायग्राम दिया हुआ था और तुम्हें बस ये देखना था कि B पॉइंट पे probability of finding the electron is 0, correct। And the next one, the wave numbers of the 3 spectral line of the hydrogen atom are, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, राइट। तो वेव नंबर्स ऑफ 3 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर कंसीडर्ड, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बिलोंगिंग टू द बामर सीरीज। तो हमें पता होता है कि लाइमन, देन बामर, देन पाशम, देन पीफन। तो बामर सीरीज क्या होती है, इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम आते हैं, और किसी भी हायर से अगर सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है तो उसको बोलते हैं बामर सीरीज स्पेक्ट्रम, राइट। तो बामर सीरीज बोल रहा है, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो n is equal to 3 से n is equal to 2 में आएगा, और it will become 4 to n is equal to 2, n is equal to, अगर 3 स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहे हैं तो n is equal to 2 में ही जाएगा, ये तो पक्का है, राइट। तो n is equal to 2 में जाएगा, और हमें फाइंड क्या करना था, वेव नंबर्स ऑफ द 3 स्पेक्ट्रल लाइंस। तो वेव नंबर का मेरे पास फॉर्मूला होता है, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज रेडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स
और अगर हाइड्रोजन है तो अदरवाइज आर जेड स्क्वायर लेते हैं। तो लेकिन अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, जेड की वैल्यू 1 हो जाती है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, राइट। तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो इट विल बिकम 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1/4 माइनस 1/16। एंड थर्ड के लिए हो जाएगा Rydberg constant times 1/4 minus 1/5 का स्क्वायर would become 25, right? So Rydberg constant times यहाँ पे हो जाएगा 9 minus 4 will become 5, 5/36, तो 5r/36 आएगा, और यहाँ से LCM will be 16 एंड 4 minus 1 यानी कि 3r/16 आ रहा है, 3r/16, 5r/36, 5r/36, 3r/16, एंड अगर इसको चेक कर लेते हैं तो दिस इज 21r/100, दिस इज 21r/100, तो डी पार्ट इज योर आंसर, राइट। तो इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस हमें आइडेंटिफाई करनी थी कि विच वन इज फ्रॉम द बामर सीरीज, राइट। तो बामर सीरीज के लिए हमारे पास ये 2 फिक्स होता है, तो दैट मीन्स यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द बामर सीरीज कि व्हाट शुड बी द वेव नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज wavelength of the spectral line obtained in the spectrum of lithium 2+, तो ये सब हाइड्रोजन लाइक एटम होते हैं, अलाइड 2+ आयन की बात कर रहे हैं। when the transition takes place between two levels, यहाँ देखो थोड़ी छोटी सी चीज पूछ ली, whose sum is 4 and the difference is 3, तो पहले मैं यहाँ से लेवल्स निकाल लेती हूँ कि किस ऑर्बिट से किस में जा रहा है। whose sum is 4 का मतलब क्या हो गया कि n1 प्लस n2 तुम्हें दे दिया है 4, और डिफरेंस इज 2 का मतलब क्या है कि दो जो हमारे ट्रांजिशन लेवल्स हैं, तो n2 माइनस n1, क्योंकि वो हायर से लोअर में ही ट्रांजिशन होगा, तो यहाँ पे n2 माइनस n1 का जो डिफरेंस है वो 2 दिया। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो यहाँ से 2n1 इज इक्वल टू 6, यानी कि n1 की वैल्यू आ रही है 3, और n1 अगर 3 हो गया तो n2 क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। तो लाइगमन ही हुआ डेफिनेटली। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 से 1 में, तो 3 से 1 में ट्रांजिशन के लिए हम चेक कर लेते हैं वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, हमें कैलकुलेट करनी है। तो वेवलेंथ के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1/λ इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे 1/λ का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, राइट। तो इसी फॉर्मूले पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है ना, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में बोल रहा है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यू बोल रहा है, तो 109377 वैल्यू अगर इसकी पुट कर देते हैं तो 109377 इंटू जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर लिथियम के लिए कितना होगा, लिथियम 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर मिल गया 9। मैं सेंटीमीटर में इसलिए पुट करूं क्योंकि देखो ये सेंटीमीटर में वैल्यू है, तो इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट, वरना वो 1.09 वाला फॉर्मूला भी होता है, दैट इज इन मीटर इनवर्स, राइट। तो इसकी यूनिट जो मैं लिख रही हूँ सेंटीमीटर इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, राइट। तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो 1/n1 स्क्वायर यानी कि 1/1 माइनस 1/9, तो 1/1 माइनस 1/9 इट विल बिकम 8/9, तो 109377 इंटू 9 इंटू 8/9, तो 9 विल गेट कैंसल्ड आउट, और यहाँ पे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंस दे आर आस्किंग द वेव लेंथ, तो यहाँ जो मैंने 1/λ निकाला है इसका रेसिप्रोकल करोगे, क्योंकि 1/λ इज वेव नंबर, राइट। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वी विल गेट द वेव लेंथ, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी, हम यहाँ पे आंसर से मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रही हूँ, 10977 इंटू 8, और दिस इज 875056, और उसका रेसिप्रोकल कर लो। दिस इज 1.1 इंटू 10⁻⁻6, तो 1.1 इंटू 10⁻⁻6, द आंसर इज बी पार्ट, राइट। तो यहाँ से भी हम 10⁻⁻6 चेक कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻⁻6 में ही ऑर्डर होना था, और अगर 1.1 के अराउंड आ जाता है तो हम आंसर अपने आप ही राउंड ऑफ करके भी टेक कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, राइट। Next question is, the hydrogen spectrum consists of several spectral lines of Lyman series L1, L2, L3. L1 is the lowest energy among the Lyman series. L1 lowest है obvious है ना, and similarly Balmer के लिए भी दिया है B1, B2, B3. The value of X पूछ रहा है, और क्वेश्चन में given है the energy of L1 is X times the energy of
B1, राइट। तो मैं लिख दे रही हूँ एनर्जी ऑफ L1 इज इक्वल टू x टाइम्स एनर्जी ऑफ B1। तो लाइमन की फर्स्ट सीरीज है L1 और बामर की फर्स्ट सीरीज है B1। तो इन दोनों का एनर्जी निकाल के इक्वेट कर देते हैं x टाइम्स करके। तो एनर्जी ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइमन सीरीज का मतलब क्या हो गया, 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, 2 to 1। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, रेडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो हमें यहाँ पे Z कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला सीधे क्या हो जाएगा, अगर रेडबर्ग कांस्टेंट कैंसिल कर देती हूँ, रेडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स 1/n1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू x टाइम्स रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर। बामर में अगर देखोगे तो बामर में सेकंड में आता है, तो बामर का फर्स्ट ट्रांजिशन क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2, राइट। तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो n1 स्क्वायर विल बिकम 4, सो 1/4 माइनस 1/9, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 माइनस 1/4 विल बिकम r विल गेट कैंसल्ड आउट, सो 1 माइनस 1/4 विल बिकम 3/4, r कैंसिल हो गया। आफ्टर दैट x टाइम्स, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बिकम 36 एंड 9 माइनस 4 विल बिकम 5, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से 4 9 जो 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 27/5, 9 3 27, so x इज इक्वल टू 27/5। so 27/5 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, इट विल बिकम 5.4। So 5.4 will be the answer। 5.10 की बार -1 में पूछा है इंटीजर वैल्यू में, तो ये 54 हो जाएगा, क्योंकि 54 into 10⁻⁻1 will become 5.4, right? So 54 will be the nearest integer answer। नेक्स्ट वन, दे आर आस्किंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन, नोटेशन मैग्नीशियम 24 प्रोटॉन, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि 12 प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, तो 9th की बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आंसर ए तो होगा ही। एंड सेकंड में वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी से अगर मुझे वेवलेंथ निकालना है तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला होता है। तो v हमारे पास लाइट की स्पीड होगी 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, उसके लिए वेवलेंथ में चेक कर लेती हूँ कि स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, दिस इज 4.5 × 10⁻15, तो लैम्डा चेक कर लेंगे इसका, सो इट विल बिकम 3/4.5 10⁻8 माइनस 15 7, ठीक है। और दिस इज लैम्डा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 3 जा एंड 15 2 जा, तो 2/3 मतलब 0.67, so 0.67 into 10⁻⁻7, तो that is correct because 6.7 into 10⁻⁸ is given, right? तो 0.67 this is same, तो this answer is correct। लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना था, तो this one is correct। तो C को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे दिया है लैम्डा 1 के लिए 900 नैनोमीटर एंड सेकेंड वन के लिए निकालना है, दैट इज 300 नैनोमीटर, राइट। तो E1 E2 का रेशियो पूछ रहा है, तो ये डायरेक्टली देख पाओगे, क्योंकि जो E1 एनर्जी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट। तो E इज इक्वल टू hc/लैम्डा होता है, तो जो E2/E1 होगा दैट विल बी लैम्डा 1/λ2। तो अगर लैम्डा 1/λ2 करोगे, E1/E2 की वैल्यू कह रहा है, ओके, E2/E1 नहीं है, E1/E2 कह रहा है, तो E1/E2 की जो वैल्यू होगी रेसिप्रोकल टू लैम्डा होती है, तो E1/E2 विल बिकम लैम्डा 2/λ1, राइट। तो लैम्डा 2/λ1 अगर हम करते हैं, तो लैम्डा 2/λ1 कितना आएगा, लैम्डा 2 मुझे गिवन है 300 नैनोमीटर एंड दिस वन इज 900, सो 300/900 करोगे इट विल बिकम 1/3। सो आंसर ये वाला रॉन्ग हो गया, तो मुझे इनकरेक्ट ढूंढना था, तो A एंड C आर द करेक्ट आंसर, क्योंकि मुझे इनकरेक्ट चूज करना था। एंड द लास्ट वन भी अगर तुम चेक करोगे तो लास्ट वन करेक्ट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन है, एनर्जी गिवन है, तो अगर एनर्जी और वेवलेंथ दोनों पता है और नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, राइट, तो E इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, nhc/λ, तो n इज द नंबर ऑफ फोटॉन, क्योंकि 1 फोटॉन के लिए जो एनर्जी होती है दैट इज hc/λ, तो हमें एनर्जी भी गिवन है 1 जूल, h और c की वैल्यू पता ही होती है, वेवलेंथ इज आल्सो गिवन, फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन, राइट। तो आंसर मुझे पता चल गया था, क्योंकि ये दोनों हमारे इनकरेक्ट हो गए, तो A एंड C इज द आंसर, उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट यू कैन कैलकुलेट इट आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये वर्क फंक्शन पे क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चन फिजिक्स में भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है। द वर्क फंक्शन ऑफ द टू मेटल्स आर इन द रेशियो 1:2। तो वर्क फंक्शन का रेशियो तुम्हें गिवन है व्हेन दीज मेटल्स आर एक्सपोज टू फोटॉन्स ऑफ द एनर्जी। तो दोनों मेटल्स डिफरेंट है बट दे आर एक्सपोज टू द same amount of energy, that is 6 electron volt, right? Kinetic energy of liberated electrons of Ma is to Mb is in the ratio। तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट मासेस का रेशियो दिया हुआ है, तो हमें वर्क फंक्शन चाहिए। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द डिफरेंट मेटल, करेक्ट? तो वर्क फंक्शन निकालना है। तो मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आइंस्टाइन इक्वेशन से क्या पता चल रहा होता है कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी को आई कैन राइट टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो मैं डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी लिख लेती हूँ। फर्स्ट वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, के ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी दोनों को दिया गया है दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 6 माइनस वर्क फंक्शन फर्स्ट का, अच्छा वर्क फंक्शन का रेशियो गिवन है, तो अगर मैं एक का वर्क फंक्शन x ले लेती हूँ तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी सेम फॉर बोथ एंड द वर्क फंक्शन इज ट्वाइस। तो इफ द वर्क फंक्शन हियर इज x, तो हियर द वर्क फंक्शन विल बिकम 2x। तो इन दोनों का जो रेशियो है काइनेटिक एनर्जी का दैट इज आल्सो गिवन 2.642। तो जस्ट डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को, द रेशियो इज आल्सो गिवन। तो इफ यू डिवाइड दिस you will get 2.642 upon 1 is equal to 6 minus x upon 6 minus 2x। जस्ट बाई क्रॉस कर लो, इसके बाद कुछ है ही नहीं। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 इंटू 2.642, दिस इज 15.852 minus this is 5.284x, राइट? तो अगर इसको राइट ले जाओगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस और दिस विल बिकम 4.284x और 15 माइनस 6 अगर करेंगे तो इट विल बिकम 9.852। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 9.852 डिवाइड बाय 4.284, दिस इज 2.29 कुछ आ रहा है, तो इट इज 2.3 अप्रोक्सीमेट। तो 2.3 एंड इसका डबल वर्क फंक्शन जब अगर लोगे दूसरे मेटल के लिए तो दिस विल बिकम 4.6, राइट? तो 2.3 एंड 4.6 विल बी योर आंसर, राइट? तो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, छोटा सा कैलकुलेशन है, उसको तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। टाइम सेव करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, तो कुछ करना नहीं है, सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आइंस्टाइन इक्वेशन से आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, which of the following statement regarding the energy of the stationary state is true? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, राइट? तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं वो सब हाइड्रोजन लाइक एटम पढ़ते हैं। तो He+ के लिए देखो हमें एनर्जी का पता होता है, जूल में सारा दिया हुआ है। तो माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁶ क्या होता है फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² बाई n²। ये फॉर्मूला होता है और इन्होंने दे रखा है प्लस, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग। सेकंड इज लिथियम 2+, लिथियम का हमारे पास सेकंड सही हो गया, क्यों? बिकॉज लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 एंड 3² इज 9 एंड थर्ड ऑर्बिट बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो थर्ड ऑर्बिट का मतलब n को भी 3 पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और z भी 3 है तो ये भी हो जाएगा 9 और 9 कैंसिल आउट, तो यही तो दिया है तुम्हें रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू। तो सेकंड इज करेक्ट। तो बाकी तुम चेक कर सकते हो, है ना? सेकंड सब में यही थी, फॉर्मूला चेक कर लेना। ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो Z1 लिख लेना, तो Z को अगर हम 1 ले लेंगे तो 1/n² ये वैल्यू आनी भी होगी, गलत होगा। और ये हीलियम के लिए भी चेक कर लेना, बट द आंसर इज बी पार्ट, यहीं से आ गया। तो डायरेक्टली कोई देखेगा तो सीधे सीधे समझ जाएगा कि ये Z² n² कैंसिल हो गया, तो रेडबर्ग कांस्टेंट थर्ड ऑर्बिट के लिए लिथियम के लिए यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपका क्वांटम नंबर से है, ये क्वेश्चन आसान होता है। क्वांटम नंबर अपने आप में अगर प्रैक्टिस करो तो सबसे इजी क्वांटम नंबर ही है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट कैन हैव क्वांटम नंबर दिस, ओके। तो अगर ये वाला देखोगे तो इसमें तो एक ही हो सकता है, सेकंड में तो 1 होगा, सेकंड में इसलिए 1 में 3 दिए हुए हैं देखो, राइट? तो इसमें 1 इसलिए हो सकता है क्योंकि n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, दिस इज
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड दिस वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। और सारी क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन्स की सेम नहीं हो सकती, राइट? दिस इज द Pauli exclusion principle that no two electrons can have all the same quantum number. If first three are same, then the spin will be definitely different, right? So सारी same तो सिर्फ एक ही में हो सकते हैं, तो इसका तो 1 होगा, सेकंड वाले का। फर्स्ट वाले में मैं चेक कर लेती हूँ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्वांटम नंबर में पॉसिबल हैं। तो n इज इक्वल टू अगर 5 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या होती हैं? 0 to n minus 1, यानी कि l की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 4, राइट? तो L से हमें M चाहिए -1, तो L अगर 0 है तो M भी 0 होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि हमें M चाहिए -1, राइट? तो L अगर 1 है तो फिर M की वैल्यू -1 0 1 हो सकती है। यहाँ पे क्या हो सकता है? -2 -1 0, यानी कि यहाँ भी -1 मिलेगा, यहाँ से +2 तक मिलेगा, यहाँ -3 -2 -1 से लेकर के +3 तक, और यहाँ पे क्या मिलेगा? -4 -3 से लेकर के +4 तक, यानी कि इन सब में यू विल गेट द -1 एज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स तुम्हें मिलेंगे, इन सब में तुम्हें एक एक ऑर्बिटल मिलेगा जिसका n 5 होगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 होगा, राइट? तो मैग्नेटिक क्वांटम एवरी ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस 8 विल बी द आंसर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 8 और सेकंड में 1, सो 8 and 1, यानी कि फर्स्ट पार्ट इज योर आंसर, राइट? तो दिस वाज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। क्वांटम नंबर इज ऑलवेज इजी। एंड अगर आप नोटिस करो तो क्वेश्चन ज्यादातर रिडबर्ग कांस्टेंट पे आता है। रिडबर्ग कांस्टेंट वाला क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि यही आता है, या तो उसमें वेव नंबर पे पूछ लेगा, या वेवलेंथ पे पूछेगा, या एनर्जी पे पूछेगा, बट क्वेश्चन वहीं से आएगा, स्पेक्ट्रल लाइन से, राइट? तो एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बामर लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x जूल। तो फर्स्ट यानी कि जो लोएस्ट बामर में होगा वो 3 से 2 में आता है, राइट? ट्रांजिशन अगर हम देखें तो सेकंड में ही आता है, राइट? तो अगर हम इसकी एनर्जी देखते हैं, x गिवन है, हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Z²/n² रिडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स। तो रिडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स हाइड्रोजन के लिए तो Z² 1 हो जाएगा, और Z² 1 बाई फर्स्ट बामर सीरीज है, तो फर्स्ट बामर सीरीज में ट्रांजिशन इज फ्रॉम 3 to 2, ठीक है? तो ये आएगा 1/n1²। तो 1/n1² मतलब हो गया 2 से 3, दैट मीन्स 1/4 - 1/9, राइट? तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा आपका 36, और दिस विल बिकम 9 - 4 यानी कि 5। तो ये मुझे x गिवन है। तो पूछ रहा है सेकंड बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम के लिए द एनर्जी निकालिए सेकंड के लिए। तो सेकंड वाली वैल्यू क्या होगी? n इज इक्वल टू 4 से 2 में आएगा, राइट? 4 से 2। तो रिडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स हाइड्रोजन एटम ही है, तो 1/2 का स्क्वायर विल बिकम 1/4, एंड इट विल बिकम what? It will become 4 का स्क्वायर, it will become 16, right? So in terms of x पूछ रहा है, तो यहाँ पे 16 एलसीएम हो जाएगा, एंड 4 - 1 3, तो 3r/16। तो एक काम करो, r की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो r की वैल्यू आ जाएगी 36x/5। तो r की जगह मैं पुट कर दे रही हूँ क्योंकि x के टर्म में आंसर मांग रहे हैं, तो r की जगह यू कैन पुट 36x/5, 36x/5 इंटू 3/16, राइट? तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली कुछ रिड्यूस हो रहा है, 4 से चला जाएगा, 4 4 जाए, 4 9 जाए, सो इट इज 27/5, 27/20, 5 4 जाए, 5 and 4 आर देयर ना, सो into x, so 27/20 is approximately 1.35 into x, so answer is first one, so 1.35x will be your आंसर। तो मुझे ये वैल्यू एनर्जी एक्स के टर्म में दे रखी थी, इसको ई भी बोल सकते थे, तो ये 1.35 ई हो जाता। कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं तो उसमें सब में करना एक ही काम होता है कि एनर्जी निकालनी है या वेव नंबर निकालना है, राइट? तो एनर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स present in the first Bohr orbit of the hydrogen atom to be excited to the second Bohr orbit, right? तो तुम्हें एनर्जी निकालनी है, वो भी जूल पर मोल में। तो हमें जो फॉर्मूला पता है रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में, वो 1 एटम के लिए पता है, 1 मोल के लिए नहीं। तो अगर 1 मोल के लिए चाहिए तो 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, राइट? तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इस चीज को नहीं भूलना है, राइट? तो इसको हम देख के डायरेक्टली बता सकते हैं कि आंसर डी पार्ट होगा, क्योंकि जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये वैल्यूज तो नहीं आने वाली है, राइट? क्योंकि एवोगाड्रो नंबर उसको प्लस कर देगा, और जो रिडबर्ग कांस्टेंट में जो वैल्यू है वो 10 की पावर माइनस, वो भी अर्ग में दी हुई है, ध्यान रखना। इसको तुम जूल में करोगे तो 10 की पावर -7 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 2.18 10 की पावर -18 ही हो जाएगा।
अर्ग में करोगे, अर्ग में है, इसको 10⁻⁻7 से करोगे तब आएगा जूल, राइट। तो 10⁻18 भी बन जाएगा वो। तो एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 में जूल में लिख रही हूँ, तो 1/n1² माइनस 1/n2²। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट है और यहाँ पे एक्साइट करके इसको सेकंड बोर ऑर्बिट में ले जा रहा हूँ, यानी कि 1/n1²। तो 1/n1² माइनस सेकंड ऑर्बिट के लिए हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर बिकम 4, करेक्ट। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये वैल्यू आएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 एंड 1 माइनस 1/4 इज डेफिनेटली 3/4 एंड ये आपका 1 एटम के लिए है। तो मैंने देखो उसको कहा कि इसको तुम्हें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर मोल में आंसर पूछ रहा है, यही सब चीजें देखनी नोटिस करनी होती है। पर मोल में पूछ रहा है तो बस इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 से करोगे तो ये जूल पर मोल में बन जाएगा। तो जब 23 और ये -18, तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, पावर 5 में आंसर आएगा, चाहे कैलकुलेट कर लेना। तो बाकी आंसर अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। सो डी पार्ट इज योर आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो स्पेक्ट्रल लाइन से हर पेपर में क्वेश्चन आया है, राइट। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द पार्शियल सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज। तो देखो हमारे पास जो सीरीज होती है इसमें लाइमन, फिर बामर, फिर पार्शियल, फिर पी फंड ब्रैकेट, फिर पी फंड, राइट। तो यहाँ पे जो हमसे पूछ रहा है बामर सीरीज फर्स्ट लाइन ऑफ द पार्शियल सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ द पार्शियल सीरीज क्या होगी। तो पार्शियल सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो थर्ड में जाता है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ द पार्शियल क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट लाइन ऑफ द पार्शियल हो जाएगी, राइट। और सेकेंड लाइन ऑफ द बामर में 2 में जाता है इलेक्ट्रॉन, तो बामर में अगर 2 में जाएगा तो वो भी सेकेंड लाइन बामर की बोल रहा है। तो फर्स्ट लाइन जो होगी वो 3 से 2 होगी, फिर 4 से 2 होगी, 2 n इज इक्वल टू 2 में। और फिर पूछ रहा है थर्ड लाइन ऑफ द पार्शियल, क्या होगी, पार्शियल में थर्ड लाइन में ही जाता है, तो थर्ड में जाता है, राइट। तो 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 6 to 3 में जाएगा थर्ड लाइन ऑफ द पार्शियल, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो 6 to 3 जाएगा, और इसमें किस में जाएगा, 4 to 3 जाएगा, एंड इसमें किस में जाएगा, बामर की सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन बामर की क्या हो जाएगी, 4 से 2 में जाएगा, 4 से, क्योंकि फर्स्ट लाइन जो बामर की होती है इसमें 3 से 2 में जाता है, सेकंड लाइन बामर की 4 से 2 में जाएगा, राइट। एंड फोर्थ लाइन ब्रैकेट की, ब्रैकेट में फोर्थ में जाता है, एंड फोर्थ लाइन पूछ रहा है, यानी कि 8 to 4 जाएगा, 8 to 4 जाएगा। तो तुम्हें बस यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करना नहीं है, सीधे अगर चाहो तो अरेंजमेंट वैसे भी देख सकते हो, क्योंकि रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू सब जगह सेम ही होगी। और अगर हम डायरेक्टली देखना चाहें तो क्या आएगी एनर्जी 1 सारे हाइड्रोजन एटम के लिए है तो कोई जेड की प्रॉब्लम नहीं है, तो 1/n1² माइनस 1/n2²। अगर हम फर्स्ट वाले के लिए देखें ए के लिए, तो 1/n1² माइनस 1/n2² करोगे तो आएगा 1/9 माइनस 1/16, और बी के लिए आएगा मेरे पास 1/4 माइनस 1/16, और सी के लिए आएगा 1/9 माइनस 1/36, एंड द फोर्थ वन के लिए आएगा इट विल 1/16 माइनस 1/64, राइट। तो अगर मैं, ये सब रिडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स है, ये ए बी सी डी, तो मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही चेक कर लेती थी कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी होगी इसमें, तो 1/4 इन सब में सबसे बड़ा है, तो 1/4 वाली वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करो तो दिस वैल्यू बी तो सबसे ग्रेटर होगा, राइट। तो सबसे ग्रेटर तो बी होगा। और अगर उसके बाद देखो तो 1/9 बड़ा है, तो 1/9 के 2 है, तो 1/9 में 1/16 माइनस हो रहा है, 1/9 में 1/36 माइनस हो रहा है, तो डेफिनेटली ये लेस है, तो ये वैल्यू ग्रेटर होगी। तो उसके बाद आएगा ए, तो बी से पहले आएगा ए, और ए से पहले आएगा सी, और उसके पहले क्या बचा, डी, यानी कि ए पार्ट आंसर हो गया, राइट। सो क्वेश्चन वाज अगेन सिंपल, कोई कंपैरिजन, अदरवाइज तुम कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल में निकालोगे तब भी बना सकते हो, लेकिन हम सीधे कंपेयर करके भी चेक कर सकते हैं। एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, एंड इन दिस electric discharge is passed to the gaseous hydrogen, the hydrogen molecule dissociate and the
एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ये तो सिंपल स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का। ये तो होता ही है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से जब पास करते हैं तो वो क्या होते हैं कि उसमें रेडिएशंस निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज के, राइट। सिंपल स्टेटमेंट इज करेक्ट। And the second one is frequency of the second line of the Balmer series obtained from He plus। तो सेकेंड लाइन ऑफ द बार्मर सीरीज उसकी फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, राइट। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का ही जो फॉर्मूला है E इक्वल टू एच न्यू होता है। तो अगर एनर्जी इक्वल होगी तो फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होगी। तो मैं एनर्जी के लिए सिर्फ उसका 1/n1² 1/n2² चेक कर लेती हूँ, राइट। और हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जेड की प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/n1² 1/n2²। तो बार्मर सीरीज की सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन बार्मर की क्या हो जाएगी, 4 से 2 यानी कि 1/n1² माइनस 1/n2²। ये बनेगा रिडबर्ग कांस्टेंट टाइम। अच्छा ये हीलियम प्लस का है, तो यानी कि तुम्हें जेड भी चेक करना पड़ेगा। तो Z²/n² होता है, तो यहाँ पे Z² हीलियम का Z कितना होता है 2, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा 4 टाइम्स रिडबर्ग कांस्टेंट रहेगा ही। और 1/4 माइनस 1/16 कितना हो जाएगा, 16 एलसीएम, तो 4 माइनस 1 3। तो ये 4 4 जा यानी कि 3/4 R आ रहा है, राइट। और अगर मैं सेकेंड वाले में लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज क्या होती है, 2 to 1 होती है, वो भी हाइड्रोजन एटम के लिए। तो Z1 हो गया, तो रिडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स 2 to 1 होती है, ठीक है, 2 to 1। तो 1/n1² माइनस 1/2² 4 हो गया। तो ये भी क्या आ जाएगा 3/4 है। तो दोनों इक्वल आ रहा है। तो हीलियम प्लस में बार्मर की सेकेंड लाइन और इसमें हाइड्रोजन एटम के लिए लाइमन की फर्स्ट लाइन, दोनों में एनर्जी सेम है, राइट। तो इज इट बोथ आर सेम, 3/4 आर दोनों में है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो ये क्वेश्चन सारे इसमें कंप्लीट मैंने इसमें डिस्कस कर लिए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, राइट। एंड ये इसमें फॉर्मुलेज जो भी यूज हुए थे ये भी मैंने दिए इसमें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के और जो भी क्वांटम नंबर और एनर्जी के फॉर्मुले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पे रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो जरूर करो। एक क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आया था, बाकी मोस्टली क्वेश्चन इसी से आया हुआ था, राइट। तो एनर्जी कभी वेव नंबर इन सब पे निकालना था। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।